Good morning students. How are you? Fine. Today we will do question number 7 of exercise 8.3. Let us read this question. In this question, Maria invested 8,000 rupees in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है इट इज 8,000, रेट इज 5%, compounded annually, time is not given. Let us read what are the questions. Find the amount credited against her name at the end of 2 year. तो टाइम हमारे पास कितना आया 2 year. And then find the interest for 3rd year, only interest. So now here principal is equal to 8,000 rupees. Rate is equal to 5%. Time is equal to 2 years. For the first part, time is equal to 2 years. So now amount, compound amount. Is equal to, what is the compound amount? Compound amount is equal to principal into 1 plus rate upon 100 power time. So it will be equal to 8,000 into 1 plus rate is 5%, power is equal to 2. So now it can be written as 8,000 into 105 upon 100 raised to power 2. It is equal to 8,000 into 105 upon 100, 105 upon 100, 1020, 10 से 10. Now 2 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5. 2 से कैंसिल है, यस. 2 4s are 8. नाउ 105 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 420 इंटू 21 मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं. 0 21 2s are 42, 4 कैरी, 21 4s are 84 प्लस 4 88 रुपीज. सो हमारे पास अमाउंट कितना आया आफ्टर 2 year 8,820 rupees. Now let us find the compound amount after 3 year, because हमें तो इंटरेस्ट निकालना है. अब हम कंपाउंड अमाउंट आफ्टर 3 year अगर कैलकुलेट कर ले, सो कंपाउंड अमाउंट आफ्टर 2 year को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट एक्चुअल इंटरेस्ट ऑफ 3rd year. End of compound amount at end of 2nd year. Now compound amount at end of 3rd year. Principal 1 plus rate upon time power rate upon 100 power time. So 8,000 प्रिंसिपल सेम है 8,000, 1 प्लस रेट कितना है 5% पावर 3. यहां से इसे हम कैलकुलेट करेंगे. इट इज इक्वल टू 8,000 इंटू 105 अपॉन 100 रेज टू पावर 3. ठीक है. नाउ इट कैन बी रिटन एज, इसे भी आप मिनिमाइज करो तो कर सकते हो, 5 2s are 21. सो 8,000 into 21 into 21 into 21 upon 20 into 20 into 20. Now easy to simplify. 1 2 3 1 2 3 2
4s are 2, 2s are, and 2 1s are 2. Now the square cube of 21 is 9261. So amount after 3 years is this, amount after 2 years is this. So what is the interest for third year only? So interest for third year only is equal to 9261 minus 8820. What we get? 441 rupees. So this is your question number 7. एक बार फिर देख लीजिए, इसमें हमने सेकेंड ईयर तक का जो भी अमाउंट था, कंपाउंड अमाउंट था, वो हमने कैलकुलेट किया। फिर थर्ड ईयर तक का कंपाउंड अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ओनली. दिस विल बी द 441. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. In the question number 8, find the amount and the compound interest on 10,000 rupees for 1.5 year for 10% per annum, compounded half yearly. Rate is 10%. Amount is 10,000 and time is 1.5 year. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? अगर ये इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ रुपीस को हमने पर्टिकुलर टाइम और रेट पर हाफ ईयरली के लिए दिया, उसी अमाउंट को अगर हम एनुअल पर भी देते तो क्या इंटरेस्ट सेम आता या डिफरेंट आता? सो लेट अस फाइंड इट. In this question, principal is equal to 10,000, rate is equal to 10%, time is equal to rate is equal to 10% per annum. Now compounded half yearly. When the interest is compounded half yearly, then the rate becomes half. So now the rate is equal to 10/2%. It means it is equal to 5% per half yearly. यानी कि अब हाफ ईयरली के हिसाब से जो हमारा रेट हो गया वो हाफ हो गया. एंड द टाइम विल बी इक्वल टू, टाइम इज व्हाट? टाइम हमारे पास है 1:1/2 years. So it is equal to 2 1s are 2 and 1 3, 3/2 years. 3/2 years में कितने हाफ ईयर्स आएंगे? 3/2 में कितने आएंगे? 3/2 into 2 हाफ ईयर्स. जितना भी अमाउंट हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने हाफ ईयर्स होंगे. सो इट इज इक्वल टू 3 हाफ ईयर्स. तो 3 हाफ ईयर्स हमारे पास यहां पर ये टाइम आ गया. प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है, रेट भी हमने चेंज कर लिया है. नाउ कंपाउंड अमाउंट, यू मे से डायरेक्टली अमाउंट after 3 half years is equal to 10,000. It means principal into 1 plus rate means 5% upon 100. 5% है तो 5 upon 100 power 3. So it is equal to 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 0. So it is equal to 10,000 into
21 upon 20 power 3. 10,000 into 21 upon 20. 21 upon 20. 21 upon 20. 3 zeros. 1, 2, 3. 3 zeros are cancelled. 2 ones are 2. 2 fives are 10. Now multiply all of them. 21 cube. 21 cube is equal to 9,261. Now multiply it by 5. 5 ones are 5. 5 6 are 13. Carry 3. 5 twos are 10 and 3 13. 5 fives are 45 and 1 46. Now divide this whole 46305. Divide by 4. Now what will we get? 4 ones are 4. 4 ones are 4. 4 fives are 20. 4 sevens are 28. It's 25. So 4 fives are 4 6 are 26, 24, then 25. It is equal to 11,576.25. So 11,576. So this will be equal to 11,576. Now what will be the interest? So interest is equal to compound interest is equal to 11,576.25 minus 10,000. It is equal to 1,576.25 rupees when it is compounded half yearly. So what will be the amount when it was compounded? When it will be compounded? When it was compounded annually. So annually के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें टाइम और रेट जो है एक्चुअल में गिवन है वही लेना होगा. Let us find it. So when it is compounded annually, the rate will be considered 10% per annum and time will be considered 1:1/2 year. So compound amount will be equal to principal. What is the formula? If time is in the form of t is to p by q years, तो फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम, दिस टाइम t इंटू 1 प्लस rate upon 100 into p by q. So we will use this formula to solve this question. 10,000 into 1 plus what is the rate? 10 upon 100 into 1 plus 10 upon 100 into 1 by 2. So it will be equal to 10,000 into 1 0 से 0 कैंसिल, 11 upon 10. 10 ones are 10 and 11. LCM लेंगे इनका, then again 1 0 से 0 कैंसिल, 1 upon 20. So 20 ones are 20 and 1, 21 upon 20. LCM फिर लेंगे इनका, 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कीजिए 50 पे. Now we have to multiply all of these. So 21 5s are 105. 105 into 11. So what will be the amount? So 11,550 rupees. So what will be the compound amount? Compound interest. So compound interest is equal to 11,550 minus 10,000. So it is equal to 1,550 rupees.
और ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है जो हमने 1.5 ईयर पर, जब इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड था उस समय जो हमने कैलकुलेट किया, और जब हाफ ईयरली कैलकुलेट कंपाउंडेड था तो हमारे पास कितना है 1576.25 रुपीज। तो किस में ज्यादा आया? व्हेन इट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सो वी विल गेट मोर इंटरेस्ट व्हेन इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हाट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? सबसे पहले हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट किया, फिर ईयरली के लिए कैलकुलेट किया। ईयरली में रेट एंड टाइम सेम एज इट इज है जो गिवन था, और हाफ ईयरली में ये चेंज हुए थे, रेट हाफ हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट which Ram will got on rupees 4096 if he gave it for 18 months, for 18 months, टाइम हमारे पास कितना है 18 months, at rate of 12% per annum, रेट कितना है 12% per annum, and interest is being compounded half yearly, और इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कंपाउंडर है। सो प्रिंसिपल हमारे पास हो गया है 4096 रुपीज। सो हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4096 रुपीज, रेट इज इक्वल टू 12:1/2%, इट मीन्स 25/2% per annum, per annum. If rate is 25/2% per annum, हाफ ईयरली में अगर इसे कन्वर्ट करते हैं तो परसेंट रेट कितना हो जाएगा हाफ, सो 22/2 का हाफ, तो इसका हाफ करने के लिए क्या करेंगे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पर हाफ ईयरली। क्लियर? सो इट विल बी इक्वल टू 25/4% पर हाफ ईयरली। सो रेट हमारे पास कितना है 25.4, तो हम यहां लिख देते हैं 25.4% हाफ ईयरली। क्लियर? सो अब आप इसको यहां रीड कर लीजिए, ये स्पेस हम रिमूव कर देते हैं। Now rate is equal to this, time is equal to what? 18 months. If time is equal to 18 months, then 18 months को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, बट हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली लेना है, तो हाफ ईयरली में कितने हाफ ईयरली हो गए 18 मंथ में? 6 मंथ का 1 हाफ ईयर होता है, 6 मंथ इज इक्वल टू 1 हाफ ईयर। सो इसे ईयर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे सीधा हाफ ईयर में कन्वर्ट कीजिए, तो 18 मंथ में कितने हाफ ईयर हो गए 3 हाफ ईयर्स। सो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे 3 हाफ ईयर्स, बिकॉज 18 6 3 18, ओके। सो 3 हाफ ईयर्स, सो टाइम हमारे पास 3 हाफ ईयर्स। नाउ कंपाउंड अमाउंट कितना होगा? अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम यानी कि 3। 1 प्लस, अब यहां से कभी भी ऐसी क्वांटिटी मिले a अपॉन b अपॉन c, इसका मतलब होता है a अपॉन बी सी, बट ये भी आप याद रखना a अपॉन b अपॉन c, अगर ये ऐसे होता विच इज डिफरेंट वन, इट मींस ये लाइन ऐसे होती कि a अपॉन b प्लस b अपॉन c, तो ये होता ac अपॉन b, इसमें c ऊपर चला जाता, इसमें b नीचे आएगा। इन दोनों को आप याद रखना अच्छे से,
ठीक है, तो यहां पर वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 4 नीचे आ जाएगा, सो 25/400। 25 से कैंसिल हो रहा है, यस, 25 वन जा 25, देन 25 15, 25 6 जा 150 पावर 3, सो it is equal to 14096 into 16 the 16 plus 1 17/16 power 3. Now 4096 into 17/16 17/16 17/16. Now कैंसिल हो रहे हैं, 16 वन 16, 16 टू 32, कितना बच गए 8, 89, 16 5 80, देन 16 6 96. अब 16 से फिर कैंसिल हो रहा है, 16 वन 16, 16 6 96, देन 16 से 16 कैंसिल. नाउ द क्यूब ऑफ 17 इज इक्वल टू 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289 and 17 cube is equal to 4913. ये याद रखना आपको, मैंने पहले भी कहा था याद करने के लिए. So these are very important for your calculation. So what is the amount? Amount कितना है हमारे पास, 4913 rupees. Okay. Now I am giving you 3 questions to do practice in the rough notebook and then send it to me. In the first question, what will be the compound interest on rupees 1000? आपके पास 1000 rupees given है, आपको इसका compound interest निकालना है. टाइम और रेट आपके पास given है, टाइम 2 year, रेट 20%, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एनुअली की जगह हाफ ईयरली है. पहला क्वेश्चन आपको इस तरह करना है कि आपको हाफ ईयरली लेकर टाइम और परसेंटेज दोनों, टाइम और रेट दोनों को चेंज करना है. नाउ सेकंड वन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 800 रुपीज है, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट जो हमारे पास 82 रुपीज मिलता है फॉर 2 ईयर. टाइम कितना है 2 ईयर के लिए, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालिए. In the next third one में आपके पास क्या गिवन है, you have to find the difference between CI and SI. SI और CI के बीच में क्या डिफरेंस होगा जब प्रिंसिपल कितना है 4000, रेट हमारे पास 5%, टाइम हमारे पास कितना है 2 ईयर. So you have to solve these questions and send the solution to me. Thank you.